کوئی وجہ نہیں تھی کہ ایران کی طرف سے ایسی حرکت ہو۔ ماشکیل میں ایرانی فورسز کی فائرنگ سے 3 پاکستانی جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے اندر سب پریشان اور حیران تھے جب یہ معاملہ ہوا، لیکن اب تو یہ معاملہ ہو گیا۔ آج بھی ایران نے پاکستان کے بارڈر کے اوپر کچھ لوگوں کو مارا ہے۔ اوبویسلی یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ٹینشن والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ معاملات سنبھل نہیں رہے۔ ایرانی اہلکار 2 پاکستانیوں کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ ایرانی فورسز نے سرحدی علاقے میں فائرنگ کر دی۔ دوسرا 25 کروڑ لوگوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے۔ اور ایران جو ہے وہ کنٹینیوسلی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو پاکستان کی سائڈ پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ پاکستان ایران کے حوالے نہیں کر رہا۔ اس وقت بڑی بات چل، میاں صاحب کہہ رہے ہیں، میاں صاحب کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی ہے ضرور، ہم آج پھر دوبارہ ہم تجارت کھیل لیں۔ How can you do that? میاں صاحب the things are larger than this۔ ادھر نریندر مودی نے پاکستان کی ایک کے بعد ایک بے عزتی کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، یعنی ایک کے بعد وہ ایک اٹیک کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر۔ پھر آپ کے کہنے سے فرق کیا پڑتا ہے کہ بھارت آپ کے ساتھ ٹریڈ شروع کر لے گا؟ آپ کے کہنے پہ بات اٹکی، پہلے سب سے پہلے تو یہ بات ہے آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ رکا ہوا ہے۔ دوسری پارٹی کو آپ نہیں بالکل میں نے کئی آرٹیکل دیکھے اس وقت، ایشوز ان کے کیا ہے، یہ بھارت اس پہ ریئیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا ابھی مودی صاحب آگے دیکھیں گے پہلے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایران نے ایسا کیوں کیا کہ انڈینز آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ٹوریزم بڑھے گا، ان کے بزنس بڑھیں گے، انڈیا انویسٹمنٹ بھی ان کے ملک میں کرے گا۔ دیکھیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایران اور پاکستان کے بار بار جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اس سے بہت نقصان ہوگا۔ دیکھیں ایران نے اگر پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان بھی جوابی کارروائی کرے گا ایران پہ، حالانکہ وہ بھی مسلم دیش ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، مگر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں ایران کے جو تعلقات ہندوستان کے ساتھ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کب کے خراب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہو گئی ہے، ہندوستان کے ساتھ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان کے ساتھ دیکھ لیں وہ جنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جنگ بھی کیوں کر وہ پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے، پاکستان کو مجبوراً جوابی کارروائی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی، دوسرے ممالک کہتے ہیں، پاکستانی عوام کہتی ہے کہ جی ایران نے پاکستان پہ اٹیک کیا اور پاکستان نے کچھ نہیں کیا، تو پھر مجبوراً پاکستانی آرمی کو ان کو منہ توڑ جواب دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اچھی بات نہیں، خطے میں امن اور شانتی کا یہ نا جو سسٹم ہے یہ خراب ہوتا جا رہا ہے، تو باقی ہم دیکھیں گے ویڈیو میں، تو ویڈیو کی بات کریں گے بعد، چلو آؤ ویڈیو دیکھیں۔ آج بھی ایران نے پاکستان کے بارڈر کے اوپر کچھ لوگوں کو مارا ہے۔ اوبویسلی یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ٹینشن والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ معاملات سنبھل نہیں رہے۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ وہاں پہ کسی قسم کے تیل کی کنسائنمنٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ تیل کی کنسائنمنٹ، اچھا ایک طرف آپ کو پتہ ہے سارا اللیگل تیل پاکستان جو ہے وہ منگواتا ہے وہاں سے، اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ خاموش ہے اس سلسلے میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ اللیگل تیل نہیں منگوائیں گے تو گزارا کیسے ہوگا۔ جو بات فیکچول ہے، جو کرنے والی ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب پاکستان کے اندر ریسنٹلی ایرانی صدر رئیسی صاحب آئے تھے، جو کہ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ رئیسی صاحب آئے، بڑے اچھے تعلقات ہوئے، بڑی چیزیں ہوئیں، مسٹرس ختم ہوا، اور آپ کو یاد ہے جنوری میں اس سال ایران نے پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کیا، سرجیکل سٹرائک کی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو سٹرائک ہے بیسیکلی یہ ایک انڈین ایڈوائس تھی، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ ملٹیپل ٹائم سٹرائکس کر چکا ہے، اور ایران جو ہے وہ کنٹینیوسلی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو پاکستان کی سائڈ پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ پاکستان ایران کے حوالے نہیں کر رہا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ بھی یہی فارمولہ اڈاپٹ کریں جو انڈیا نے اڈاپٹ کی ہے۔ اس وقت بڑی بات چل، میاں صاحب کہہ رہے ہیں، میاں صاحب کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی ہے ضرور، ہم آج پھر دوبارہ ہم تجارت کھیل لیں۔ How can you do that? میاں صاحب the things are larger than this۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے حالات دیکھیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، پھر آپ کے کہنے سے فرق کیا پڑتا ہے کہ بھارت آپ کے ساتھ ٹریڈ شروع کر لے گا؟
आपके कहने पे बात अटकी। पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पर रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था, उसमें कद आपकी कितनी पावर थी और आज आपकी कितनी पावर है। जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है वो आपके साथ आज है या नहीं है, वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते दूसरी पार्टी के साथ। हाँ, रिजर्वेशन है उनको कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, आपने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दी है। मियां नवाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए थी इसी तकरीर के अंदर कि हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, उनको तसल्ली देंगे कि हम स्टेट इज नॉट इन्वॉल्वड। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपके तो कंट्री आपके खुद कंट्रोल में नहीं है। आपके ऊपर तो अभी परसों फिर आपके ऊपर अटैक हुआ अफगानिस्तान से, जिसमें आपके सिपाही मारे गए हैं। आपके कंट्री में तो आपका कंट्रोल कोई नहीं है, लेकिन बताए ना उनको कि स्टेट इज नॉट डूइंग इट एंड आवर हैंड्स आर क्लीन। हम प्रैक्टिस नहीं पैदा कर रहे हैं मजीद, आप करते रहे हैं माजी के अंदर। आपकी दुकान थी दहशतगर्दी की, ये भी साथ एडमिट करना चाहिए था आपको कि अफगानिस्तान के अंदर हकानी वगैरह ये सारे जो भैन भरा उठे बैठे ने अफगानिस्तान से, यू वर द वन क्रिएटेड देम। ये भी तो फिर बताया ना उनको कि हाँ गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। वो पोर्टफोलियो आपका है नहीं। आप तो कैरियन के साथ आए हैं, कैरियन के साथ चले जाएंगे। जो परमानेंट लोग बैठे हैं उनसे कहें कि बात करें। मैं बिल्कुल ये चिमा साहब मैं दो दिन से ये पढ़ रहा हूं चीजें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप समहाउ इन बिटवीन दीज बोथ कंट्रीज, और ट्रेड शुरू हो। मैं यहाँ अबू धाबी में 2-3 दिन से मैं मुसलसल मिल रहा हूँ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और इंडियन डायस्पोरा के साथ, और कम्युनिकेटिंग विद देम। हर एक ये कहता है, एग्री करता है कि ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड के साथ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मसाइल हल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके तहफ्फुज़ात हैं उनको भी, उनका भी ख्याल, वो कौन जवाब देगा। आप ये सिर्फ आपके एडमिशन ऑफ द मिस्टेक ऑफ वाजपेयी साहब, और उस वक्त भी यू वर नॉट द पार्टी टू बिगिन विद इट। आपने उस वक्त कारगिल शुरू किया था मियां साहब, यू वर नॉट द वन। The people, those have originally said this, people, those are originally have control over the borders. They are the one people, those are जिनको दूसरी तरफ से देखिए इस वक्त मैं एक बात कर रहा हूं, मोदी साहब को और डॉक्टर जयशंकर साहब आपको नहीं कह रहे कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। They are not, you are not party in it. You are not party in it. तो नवाज शरीफ साहब ओरिजिनली आपके कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इस वक्त। कयासराइयां हो रही हैं कि मे बी नवाज शरीफ वांट्स टू, ही विल बी बिकमिंग अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगेन। ये बातें हो रही हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत पाकिस्तान का हल सियासी लीडरान नहीं है। ये सारे तो फ्रॉडी, ये सारे पैसे खा पी कर हर एक के फाइलें खुली हैं। मुर्शद का 3.5 साल की फाइलें हैं, इनकी 20-5 साल की फाइलें हैं। कोई इस वक्त कौम को बताए तो सही 25 करोड़ लोगों को कि आसिफ जरदारी व्हाई इज इन दुबई। दो जी वीडियो देखिए, अभी तो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी। कि आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके अपने मुल्क में आ रहे हैं, ठीक है जी। और वो ईरान भी गए थे, 2-3 दिन ईरान में रहे हैं, उनके साथ बड़ी डील की है, ईरान में इन्वेस्टमेंट की भी है उन्होंने, और ईरान भी उनके साथ इन्वेस्टमेंट करने की करेगा इंडिया के साथ, ठीक है जी। इंडिया और ईरान के तल्लुकात दोस्ताना हो गया है। और फिर वो इंडिया जो अफ़गानिस्तान भी गया है, अफ़गानिस्तान वाले भी इंडिया गए हैं। और आप देख लें, ईरान ने 10 साल लीज के लिए जब हारपोर्ट जो दी है इंडिया को, ये एक मुंह बोलता उनकी दोस्ती का सबूत है, उनके तल्लुकात का सबूत है, मुंह बोलता सबूत है, जो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, सब देख रहे हैं आंखों से, ठीक है। और जो दूसरा सबूत है वो अफ़गानिस्तान है, जो कितने अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा जब हारपोर्ट पे हिंदुस्तान के साथ मिलके, ठीक है। उनके रिलेशन आप देख लें, हिंदुस्तान ने अपने रिलेशन किस तरह के बनाए हैं। हिंदुस्तान ने किस तरह अमन और शांति के साथ दूसरे देशों को कह रहा है कि अब मिल के हम तरक्की करें, अपने मुल्क को आगे लेके चलें, ठीक है जी। और एक तरफ पाकिस्तान है कि जिसके किसी भी मुल्क के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ठीक है जी। ईरान ने पाकिस्तान तक वो देखें जी, पहले भी कई दफ़ा हमने खबरें न्यूज़ सुनी है, खबरें सुनी हैं कि ईरान जी इतने अरब डॉलर का हर्जाना करने जा रहा है जी, केस करने जा रहा है कि जी मेरा इतना अरब डॉलर खर्चा हुआ है जी, क्या वो जो पाइपलाइन बिछाया कोयटा तक,
तो वो मुझे पैसे चाहिए, इस तरह की खबरें हम सुन रहे थे। तब से पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात ख़राब हैं। हालांकि ईरान के साथ ईरान पाकिस्तान आया भी था। अब कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान ईरान आया था, ईरान वहाँ पे आके इनकी बातचीत हुई थी, सारा कुछ हुआ था। जो पहले अटैक एक दूसरे पे किए थे इन्होंने, आज फिर ये न्यूज़ देख लें कि आप कि ईरान ने फिर पाकिस्तान पे अटैक किया है, कि वो कह रहा है कि जी जो दहशतगर्द यहाँ पे मैं उनके ठिकानों को उनको मार रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी। हालांकि पाकिस्तान ने यार हर मुमकिन कोशिश की है दहशतगर्दी ख़त्म करने में, हर मुमकिन कुछ। पता नहीं ये दहशतगर्दी कहाँ से होती है, कौन करवाता है, किस तरह पाकिस्तान में आ जाते हैं लोग, ठीक है। और ये पता मैं कह रहा हूँ इल्ज़ाम सारा पाकिस्तान पे आ जाता है। कहीं भी किसी भी मुल्क में कोई किसी किस्म का मसला बनता है तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आ जाता है। जी पाकिस्तान यार इतना कैसे कर सकता है जबकि पाकिस्तान के अपने हालात ही इतने ख़राब है। पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में इतना घिरा हुआ है कि वो दूसरे देशों का क्या सोचेगा, ठीक है जी। पाकिस्तान देखिए इस तरह कह के ना दूसरी दुनिया से पाकिस्तान का तल्लक ख़त्म होता जा रहा है। हर बंदा हर मुल्क यही कहता है जी कि पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे, तो दूसरे मुल्क भी वो पीछे होते जा रहे हैं पाकिस्तान से। हालांकि ऐसी बात नहीं है यार, पाकिस्तान खुद चाहता है कि हमारे मुल्क में भी अमन हो, दूसरे देशों में भी अमन हो, ठीक है जी, अमन और शांति हो। हम भी चाहते हैं कि जो जहाँ पे भी दहशतगर्दी होती है तो उनको सब मिल के आहनी हाथों से निपटे, उनको ख़त्म व तबाह बर्बाद करें। इंडिया के साथ इंडिया देख लें, इंडिया ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके गुर्बत भी ख़त्म करेंगे, महंगाई भी ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान के साथ मिलके हम डेवलपमेंट भी करेंगे, ठीक है जी। मैंने मोदी सरकार की तकरीर सुनी थी, ठीक है जी, वो कह रहे थे कि हम गुर्बत मिल के ख़त्म करेंगे, ठीक है। मगर ये कुछ और ही हालात होते जा रहे हैं, पता नहीं किस तरह हालात जा रहे हैं। हमारा मीडिया देख ले किस तरह की बातें कर रहा है, हमारा मीडिया किस तरह की बातें। ये आने वाला वक्त जो है ना वो कोई अच्छा नहीं हो रहा। मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए या इस खित्ते के लिए अच्छा नहीं है। मुस्तकबिल में बहुत ख़तरात मंडरा रहे हैं। जंग किसी सूरत में, किसी हालत में भी, किसी वक्त भी लग सकती है, जिस तरह के हालात होते जा रहे हैं, ठीक है जी। अगर मैंने पहले कहा था कि अगर ईरान को कोई मसला पेश आया तो वो या तो डायरेक्ट पाकिस्तान से बात करे या किसी दूसरे मुल्क को बोले कि यार पाकिस्तान में इस तरह की जो होती है सूरत हाल उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है जी। तो इस तरह है ना कि सूरत के देखिए आप आए रोज़ न्यूज़ सुनते हैं जी कि कभी इतने फौजी पाकिस्तान के शहीद हो गए हैं, कभी इतने सिविल जो हैं मारे गए हैं, ठीक है जी। तो वो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान शुरू से ही शिकार है दहशतगर्दी का, ठीक है जी। बहुत पुराना शिकार, जब से हमने अमेरिका के साथ रिलेशन बनाए थे ना तब से पाकिस्तान ये दहशतगर्दी का शिकार है। अमेरिका किसी का सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, ठीक है जी। अमेरिका देखें, अमेरिका भी हिंदुस्तान का कितना इत्तेहादी था, कितना उसके साथ था, मगर फिर भी उसने इंटरफेयर करने की कोशिश की, हिंदुस्तान में इंटरफेयर करने की कोशिश की, मगर वो हिंदुस्तानी है। आप लोगों, ठीक है जी, आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है जयशंकर साहब, उनके पीछे मोदी सरकार का हाथ है। उसने उसी वक्त कह दिया कि अपने आप में रहो, ठीक है जी। और अमेरिका ज़रा पीछे हुआ तो साथ ही ये जो रूस है, रूस ने भी कह दिया कि अगर इंडिया को कुछ हुआ या इंडिया की तरफ कुछ मेरी आंख से देखा तो मैं आपकी आंखें नोच लूँगा, ठीक है। मगर पाकिस्तान के मामला कुछ उल्टे हैं कि पाकिस्तान की साइड कोई नहीं लेता यार, ठीक है जी। पाकिस्तान की साइड क्यों नहीं लेता है कि जी एक तो हमने उनके पैसे देने हैं, ठीक है जी, और जब उनके पैसे नहीं देंगे तो फिर हमारे तल्लक किस तरह अच्छे होंगे। हम पैसे लेते रहेंगे अपने मुल्क को ना तो डेवलप कर रहे हैं, ना कोई इंडस्ट्रियल लगा रहे हैं इस मुल्क में, ना ही गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं, ना हमें बिजली के मसले हैं, बेरोज़गारी के मसले हैं, महंगाई के मसले हैं। जब तक ये कंट्रोल नहीं होंगे, हम IMF से जान नहीं छुड़ाएंगे, दूसरे देशों को कर्जा नहीं वापस करेंगे तो हमारे हालात ऐसे ही होंगे, ठीक है। और जब इस तरह के हालात हो गए तो फिर देख रहे कोई भी उठ के आए रोज़ पाकिस्तान कहता जी कि ये जी अटैक कर दे पाकिस्तान पे, हम आए रोज़ यही सूरत हाल होती है, ठीक है जी। फिर हमारी आर्मी भी आगे से जवाब देती है। अब देख लें, ये बहुत बड़ी बात है कि 2-3 वो आदमी साथ ले गए हैं और 2-3 लोगों को उसने शहीद कर दिया ईरान ने, ठीक है जी। ये यार इस तरह खित्ते का अमन ख़राब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ चाइना को, अफ़गानिस्तान को, हिंदुस्तान को, मलेशिया को, तुर्की को, ठीक है जी, रूस को, सबको चाहिए कि मिलके इस चीज़ का हल निकालें, बैठ के दहशतगर्दी के बारे में सोचें कि इसको कैसे ख़त्म करना है, ठीक है जी। कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय दहशतगर्दी को ख़त्म करने का सोचें यार।
सब मिलके बैठे हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है जी, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, सब मिलके बैठे, इंडिया मिलके बैठे, चाइना मिलके बैठे, और एक दूसरे को इल्ज़ाम देने की बजाय, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय आप ये सब करें कि इसको दहशतगर्दी को ख़त्म कैसे करना है। जैसे आज इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, हमें भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, मगर हम करेंगे तब ही जब हमारे हालात अंदरूनी बैरूनी ठीक होंगे। जब हम ज़रा थोड़ा सा साल उठाने की कोशिश करते हैं, कोई नया काम ही हो जाता है यार। हमें चाहिए हमारे जो नेबर्स मुमालिक है ना, उनको चाहिए कि हमें साथ लेके चले और मिल के यार एक दूसरे का एहसास करें कि यार इस तरह की अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ वाले नेबर को भी डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, हम उसका साथ देंगे। ठीक है जी, हम तो आए रोज़ कहते हैं, तो हमारी आवाम भी कहती है कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होनी चाहिए, इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो बहुत चीज़ें सस्ती मिलेगी, महंगाई पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा हमारी महंगाई पे पाकिस्तान में। तो बाकी ये जो ईरान ने मामला किया ना, ये ईरान गलत कर रहा है काम, ठीक है। ईरान इधर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने उनके सदर को शहीद किया, जब वो जो हेलीकॉप्टर का मामला बना है, जो ख़राब हो गया, 2 हेलीकॉप्टर सही वापस चले गए हैं, एक ख़राब हो गया है जिसमें उनके सदर थे वो शहीद हो गए हैं। तो ईरान उसकी तहकीकात क्यों नहीं कर रहा है, उनको क्यों नहीं पकड़ रहा है, उनको क्यों नहीं मार रहा है, इधर पाकिस्तान के अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ये हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है ईरान, इस खित्ते में हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान और ईरान की जंग होती है ना, तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ये सोचे कि अफ़गानिस्तान बोलेगा कि मेरी जंग नहीं है, पाकिस्तान और ईरान की जंग है, तो ये गलत बात है। अफ़गानिस्तान भी इसकी लिपट में आएगा, हिंदुस्तान भी इसकी लिपट में आएगा, ठीक है जी, चाइना भी इसकी लिपट में आएगा, बड़े बड़े देश जो इसकी लिपट में आएंगे। ये कोई अकेले पाकिस्तान और ईरान की जंग नहीं होगी। तो बेहतर यही है, इन मामलों को दुरुस्ती के साथ हल करना चाहिए और बैठ के इन मामलों का हल निकालना चाहिए। कोई भी देश बैठ के आगे होके इन दोनों के मामलों को दुरुस्त करने की कोशिश करे, कोई भी देश इस खित्ते में जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, चाइना, तुर्की, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, मलेशिया, ये सारे देश हैं, इनमें से कोई भी आके या इन दोनों का मामला दुरुस्त कर ले, कोई भी देश आके, उनको दूसरे देशों को छोड़ दे आप, इनमें से कोई देश आके उठ के मामला दुरुस्त कर दे इस खित्ते के अमन के लिए, इस खित्ते की शांति के लिए, वरना बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, इधर से भी उधर से भी। ठीक है जी, गलती किसकी होगी ये कोई पता नहीं होगा कि गलती किसकी है, मगर दोनों तरफ से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, ये बात है। बाकी आपने पाकिस्तानी अवाम का भी रिएक्शन देख लिया है, पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन देख लिया आपने। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।